شورا کا آخری رکوع پڑھیں گے نمبر 5 اور 25واں پارہ پڑھ رہے ہیں. 25ویں پارے کا ہم چھٹا رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 44 سے آج آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن یضلل اللہ، اور جن کو گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، فما تو نہیں لگ اس کے لیے میں ولی کوئی دوست میں بعد ہی اس کے بعد مطر ظالمین، اور تم دیکھو گے ظالموں کو لما جب العذاب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یقولون وہ کہیں گے حل کیا کلا طرف برت دی لوٹنے کی من سبیل کوئی رستہ ہے، کوئی سبیل ہے. پھر وہ کہیں گے کیا لوٹنے کا کوئی رستہ ہے. وہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جب جو جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، وہ لوگ جن کو کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اور اس کو کچھ نظر نہیں آتا، پھر گمراہی میں اس حد تک بری طرح سے مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا اور اس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا. پھر ولی ہے کسی کوئی دوستوں میں سے کوئی دوست اس کا نہیں ہوتا جو رب کو چھوڑنے کے بعد اس کا ہمسر بن جائے، اس کا ہمنوا بن جائے، اس کا مددگار بن جائے. اور تم دیکھو گے کہ جب یہ ظالم عذاب کو دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اب پلٹنے کا کوئی رستہ ہے. دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ہدایت کے رستے ہیں وہ کون بیان کیے اور ان کو رستوں کو بیان کرنے کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے جن لوگوں کو ہدایت کے رستے کی طرف رہنمائی دیتے ہیں. پھر ان کو سمجھانے کے لیے دلیل سے بات کی جاتی ہے، ان کو واقعات سے ان کو حالات نظر آتے ہیں، واقعات نظر آتے ہیں جن میں سیکھنے کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں. لیکن جب کوئی دلیل سے بھی بات نہیں مانتا، جس کو کوئی نصیحت بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتی، وہ ہدایت کے لیے بالکل تیار ہی نہیں ہوتا ہدایت دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی مثالیں بیان کی ہیں، ان کو پڑھ کر وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. یہ قرآن اس کی دل پر اثر نہیں کرتا، اس کے کانوں پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں وہ گمراہی میں اتنی دور تک نکل گئے ہیں کہ اب ان کو کوئی مددگار بھی نہیں ملتا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی سنتیں دیکھ کر قرآن کی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا، پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی عذاب کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہر یہاں سے واپس لوٹنے کا کوئی رستہ ہے. عذاب دیکھنے سے پہلے گویا بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی. جیسے ہی عذاب دیکھتے ہیں آنکھیں کھل جاتی ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے ہائے اب یہاں سے نکال دو، کوئی نکال سکتا ہے یہاں سے ہمیں. بطرح اور تم دیکھو گے ان کو جو بردونا پیش کیے جائیں گے علیہ ان پر خاشعین جھکنے والے ہوں گے، من الذل ذلت کی وجہ سے، یا ظلمونا جسے وہ دیکھیں گے من طرف خفی کہتے ہیں پوشیدہ کو، طرف کہتے ہیں نگاہوں سے، من طرف خفی پوشیدہ نظروں سے. تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ وہ جو پیش کیے جائیں گے اس پر. اب یہ اس پر کیا ہے علیہا، ہاں کیا ہے عذاب کی طرف جا رہے ہیں، اس کی زمین تو عذاب کیا ہے جہنم. تو جہنم پر جب پیش پچھلی آیت میں نا عذاب کو جماعت آئی راہ عذاب، تو یہ عذاب کی طرف جا رہے ہیں، جا کے اس کی زمین علیہا سے مراد ہے جہنم پر جب پیش کیے جائیں گے ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوگی، زمین پر نظریں گڑی ہوئی ہوگی اور وہ اپنی نگاہوں کو پوشیدہ رکھ رہے ہوں گے، اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر کر رہے ہوں گے. اب یہ بالکل عام زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مجرم کو جب اس کی سزا دینے کے لیے پیش کیا جاتا ہے نا تو ذلت کے مارے میں چھپا پڑا ہوتا ہے، وہ سر نہیں اٹھا سکتا اور کن اکھیوں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوتا ہے کہ اس کو بالکل سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ وہ کہاں پہ سر چھپائے، کہاں پہ اپنے آپ کو جا کے چھپا دے اور کوئی اس کو دیکھ نہ سکے. تو اللہ تعالیٰ وہ پوشیدہ نظروں سے دیکھ رہا ہوگا، دیکھ رہے ہوں گے. وقال الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ کہیں گے ان الخاسرین الذین، بے شک نقصان اٹھانے والے ہیں، الذین وہ لوگ خسروا جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جان واہلیہم اور اپنے
ظالم بھی عذاب مبین قائم رہنے والے عذاب میں ہے. اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ واقعتاً تباہ و برباد ہونے والے تو وہ لوگ ہیں، واقعتاً نقصان میں جانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیا، خسارے میں ڈال دیا. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ نقصان دنیا کا اگر کوئی بہت بڑا نقصان بھی ہو جائے تو کوئی بڑا نقصان نہیں ہے. ایمان کہیں گے دنیا میں انہوں نے نقصان اٹھائے، مالی طور پہ، معاشرتی طور پہ. معاشرے کے اندر ان کو جیسے کہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ ان کو کوئی لفٹ نہیں کرائی جاتی، سمجھا جاتا ہے یہ تو بس بیچارے سے لوگ ہیں. تو اب وہ کہیں گے قیامت کے دن کے واقعی اب پتہ چلا کہ نقصان میں رہنے والے کون ہیں. دنیا میں تو ہم نے چھوٹے چھوٹے نقصانات برداشت کر لیے تھے، لیکن آج ہونے والے ہیں. اور آج نقصان میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ وہ جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس عذاب سے بچانے کی فکر نہیں کی. تو دراصل بڑے نقصان میں تو وہ ہے. اور اس نقصان کی ایک اور بڑی تباہی یہ ہے کہ اتنا ظالمین فی عذاب مقیم، ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں ان کو ڈال دیا جائے گا. ظالموں کو ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. ایک تو عذاب ایسے برا ہے، لیکن جب یہ پتا چلے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ کنٹینیوس عذاب ہے، یہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والا عذاب نہیں ہے، تو اس وقت اس کی عذاب کی تباہی اور زیادہ ہو جائے گی ان کے لیے. وما کان لهم 46 ہے، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے من اولیاء کوئی مددگار ینصرونہم جو مدد کرتے ہوں گی من دون اللہ اللہ کے سوا. ومن یضلل اللہ اور جو جس کو بھٹکا دے اللہ تعالیٰ فما تو نہیں لہو اس کے لیے من سبیل کوئی راستہ. بتایا جا رہا ہے کہ جسے اللہ نے ہی گمراہ کر دیا ہو اس کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. جو اللہ کی بات نہ مانے، اللہ کی بات کی طرف توجہ نہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر اس کو کوئی بھی اس گمراہی سے نکلنے کا راستہ نہیں ملا کرتا. آیت نمبر 47 ہے. اقامت دین سے متعلق بہت اہم یہ دو آیات آتی آگے. آیت نمبر 47 اور 48 اللہ فرما رہا ہے استجیبوا لربکم، مان لو اپنے رب کی بات کو. استجیبوا مان لو اپنے رب کی یا جواب دو اپنے رب کی بات کو. من قبلی اس سے پہلے آئیں گے کہ کیا عقیدہ آ جائے یوم وہ دن لا مرد لہ من اللہ نہیں پھر مردہ پہلے بھی پڑھا ابھی پیچھے یہ پہلی آیت بھی پڑھی تھی. مردہ لوٹنے کا رد جیسے یہ ہوتا نا کہ لوٹنا پلٹنا، نہیں پھر اس کے لہو اس کے لیے پلٹنا من اللہ اللہ سے. اور مالکم نہیں اس کے لیے من ملجا کوئی جائے بنا یوم اس دن وما اور نہیں لہو اس کے لیے من نکیر کوئی انکار کرنا. نکیر کہتے ہیں انکار کو سچی ہوئی نہ کرنا، اس کا علم ہے جو نکیر انکار کرنا کسی چیز کا. اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کے نہ کوئی لوٹنے کی جگہ ہوگی، نہ کوئی جائے نہ ہوگی، نہ کوئی انکار کر سکے گا اس دن کے. اس دن کسی کے پاس سے اس دن سے پہلے پہلے اپنے رب کی پکار سن لو. اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب یہ سارے راحت میں. دراصل ہر انسان نے نا اپنی زندگی میں بڑے بڑے منصوبے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ منصوبے ہی دراصل ہمارے اس بڑے فرض سے جس کی طرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے مسلمان کو، اس کا نفاذ کے اوپر روکنے والے ہمارے اپنے منصوبے اپنی پلاننگز ہوتی ہیں جو ہم نے بنائی ہوتی ہیں. اور ہمارا دل جو ہے نا انہیں پلاننگز کے اندر اٹکا ہوا ہوتا ہے. اچھا پہلے میں یہ کام کر لوں پھر دین کا کام کروں گی. ہم سب سے آپ حتیٰ کہ حج کے لیے آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا بچیوں کی شادیاں کرنے پھر حج پہ جائیں گے، گھر بنا لے پھر حج پہ جائیں گے. تو یہ حج کی بات ہے، اس کے لیے اقامت دین کی بات بھی جب کہتے ہیں کہ جی قرآن سے جڑیں، قرآن کا سبق سمجھیں، قرآن کا سبق پھیلائیں لوگوں تک، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف فرصت کے کام ہے، جب فارغ ہو جائیں گے نا پھر یہ کام کریں گے. ہمارے بچے بڑے چھوٹے ہیں، ابھی ہمارے پاس بہت ذمہ داریاں بھی، ہم نے پتہ نہیں کیا 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 کچھ کرنا ہے. پلاننگس لمبی لمبی پلاننگس ہماری ہوتی ہیں اور لیم ایکسکیوزز ہوتی ہیں ہماری. لیکن دراصل یہ اپنی ذمہ داریوں سے
आंखें फेरने वाली बात होती है कि अल्लाह दीन के लिए जो अल्लाह ने हमें भेजा है, दीन की सरबलंदी का काम करने के लिए, उसको भूल जाए और दुनिया के कामों में लगे रहे। मौत का वक्त तो मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त आ सकती है ना। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इससे पहले कि मौत तुम्हारे सामने आ खड़ी हो, अभी वो दीन इसके कान के हुक्म पर अपने कान को धरो, अपने जो अल्लाह का ये हुक्म है इसके लिए अपने आप को तैयार करो कि अपने दीन को कायम करो। भला तो तफर्रकू फीही, ये अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, लेकिन हम इस से बिल्कुल गाफिल हैं। हमारी मुद्दत मोहलत किस वक्त खत्म हो जाए ना मुझे पता है ना आपको पता है। यहाँ पे यही बात बताई जा रही है, यही बात समझाई जा रही है बहुत अच्छी तरह से कि वो दिन जिस दिन तुम्हारे लिए कोई जाए बना नहीं होगी, उस दिन तुम्हारी तरफ से कोई कोशिश करने वाला नहीं होगा। उस ला मदद का लफ्ज जो है, इसके मानी जो है 3 मानी थे, 4 मानी किए गए हैं। मैं आपको चारों बता देती हूँ। मानी एक तो ये है कि तुम अपने गलतियों का इनकार नहीं कर सकोगे उस दिन, अपनी गलतियों का इनकार नहीं कर सकोगे उस दिन। दूसरा मानी ये है कि हो सकता है कि दुनिया में तो इंसान केस बदल ले, लेकिन क़यामत के दिन इंसान केस नहीं बदल सकेगा। फिर इसका तीसरा मानी ये किया गया कि तुम्हारे साथ जो जो किया जाएगा तुम उस पर कोई इजहार नाराजगी भी नहीं कर सकोगे। क्यों? क्योंकि तुम डिजर्व करते होगे उस अजाब को, उस सजा को, लिहाजा तुम उसके ऊपर कोई एतराज भी नहीं कर सकोगे। और चौथा मानी इसका ये किया गया कि तुम अपने इस हाल को बदल नहीं सकोगे। जिस हाल में तुमको डाला जाएगा तुम उसको बदल नहीं सकोगे। वमालकुम मिन नकीर, और तुम उसका कोई इनकार भी नहीं कर सकोगे। ये चारों मानी हो सकते हैं और चारों मानी दुरुस्त हैं कि हम उस दिन जब वहां हाजिरी होगी, उस दिन ना हम अपने करतूतों का इनकार कर सकेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि ये करके आए हैं और हमें पता होगा कि हम इसको डिजर्व कर रहे हैं, और फिर हम वहां से बच के भी नहीं जा सकेंगे। तो अल्लाह ताला हमें उससे पहले पहले सीखने और समझने की तौफीक दे दे। जिस मफहूम के साथ अल्लाह ताला इन आयात नाज़िल कर रहे हैं, उस मफहूम को हम समझ सकें। आयत नंबर 45 है, फ़इन आरदू, और फिर अगर वो एराज कर देंगे, फमा तो नहीं अरसलना, ना भेजा हमने आपको अलैहिम हफीज़न, निगहबान, इन अलैका नहीं उनके ऊपर इल्लल बलाग, मगर पहुंचा देना, नहीं आपके ऊपर इल्लल बलाग, सिवाय पहुंचाने के आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। वइन्ना, और बेशक हम सकते हैं ये बात समझ लीजिए, यानी अगर ये आपकी बात को नहीं सुन रहे, अगर अपने रब की पुकार को लब्बैक नहीं कर रहे, और अगर ये दीन की सरबलंदी के लिए कमर बस्ता नहीं हो रहे, तो इसकी कोताही जो है, इस कोताही की जिम्मेदारी जो है वो आप पर नहीं आई होगी। आपके ऊपर आपका काम क्या था? इन अलैका इल्लल बलाग, नहीं आप पर कोई जिम्मेदारी मगर साफ साफ पहुंचा देने का। आप में तो ये काम था कि आप साफ साफ बात पहुंचा दें, अगर कोई नहीं उस पर अमल कर रहा तो उसका अपना करते हैं। वइन्ना, और बेशक हम इज़ा, जब अज़क़नल इंसाना, चिढ़ाते हैं हम इंसानों को, मिन्ना अपनी तरफ से रहमतन, रहमत, फरिहा बिहा, खुश हो जाता है उसके ऊपर। फरिहा जो है, इसका मतलब होता है रिस्क, सेहत, आफियत, औलाद, हर चीज की भलाई। फरिहा बिहा, फरहत भी इसी से है, खुश हो जाना। बिहा उस पर, वइन तो सिर्फ, और अगर पहुंचता है उसको सही है तो कोई नुकसान, कोई बीमारी, कोई मौत, कोई भी नुकसान, बीमार बाबा उसके जो उसने आगे भेजा आईदी उसके हाथों ने, वइन्ना, तो बेशक इंसान इंसान शुक्रिया शुक्रा है। मतलब हमारे अगर इन पर मुसीबत आ पड़े, कोई बुराई आ पड़े, तो इनके अपने हाथों के करतूतों की बदौलत बुराई पहुंचती है, तो इंसान को बड़ा ही नाशुक्रा हो जाता है। या तो बता रहे हैं अल्लाह ताला कि अगर ये लोग हैं, अगर ये लोग एराज बरतते हैं, अगर ये इग्नोर करते हैं आपके पैगाम को, आपकी नसीहत को, तो आप पर इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि आपको इनमें निगहबान बनाकर नहीं भेजा गया। आपका काम समझाना है, आप इन पर दरोगा बनाकर नहीं भेजे गए हैं कि बसों मुझसे अपनी बात फरमाए कि ये दुनिया तो एक इम्तिहान का है ना, तो मनवाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। बस पहुंचा देना जो है पूरे इखलास के साथ, पूरी नेक नियति के साथ वो
से हम कोई काम नहीं कर पा सकते। हाँ, ये है कि हम लोगों तक दुरुस्त बात पहुंचाएं, ये मेरी भी जिम्मेदारी है और ये आपकी भी। इस तरह मजहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं हो रही, उनके जरिए दरअसल मुझे और आपको बताया जा रहा है कि हम अपनी जिम्मेदारी से गाफिल ना। अल्लाह ताला ने ये जो नेमत दी है ना मुझे और आपको, बोलने की, पढ़ने की, सीखने की, इस नेमत को आगे फैलाएं। इसको आगे फैलाना भी हमारी जिम्मेदारी है। और इंसान का हाल ये है कि इसको अल्लाह ताला की जब खुशी मिल जाती है तो बिगड़ने लगता है। और जब कोई बीमारी, कोई मुफलिसी आती है, कोई मुसीबत आती है, तो उसके अपने हाथों की कमाई की वजह से आती है, तो वो नाशुक्रा बन जाता है। दो कैफियत का दरअसल यहाँ पे तस्करा किया जा रहा है। फारिहा बिहा यानी वो कैफियत कि इंसान खुशी से पूरा नहीं समाता, टींगे मारता है। और दूसरी एक्सट्रीम क्या होती है कि मुसीबत आती है तो वो चुप करके रह जाता है। बल्कि बेसिकली ये तीन कैफियत की बात हो रही है। जब इंसान को हिदायत की तरफ दावत दी जाती है तो वो आरदू अनहाउ करता है। इन आरदू फिर वो उसे मुंह मोड़ जाता है, इग्नोर कर जाता है। और जब खुशी मिलती है बेहा बेहा हो जाता है। और जब उसको मुसीबत आती है तो सिर्फ तो वो फिर क्या होता है, सख्त मायूस नाशुक्रा हो जाता है। ये तीन कैफियत है। अपने कुरान पाक में इसको अलग से नोट डाउन कीजिए कि ये तीन कैफियत जो अल्लाह ने सब इंसानों के लिए दी है, उनमें मेरा किरदार क्या है। क्या मैं खुशी और गम में अल्लाह को भूल जाती हूँ या शुक्रिया हो जाती हूँ और कुछ का कुछ करने लगती हूँ, जुबान को राजी करने के काम करते हैं। और उससे भी पहली बात ये, असल बात ये कि जब हदायत आती है मेरे पास तो मेरा उसके बाद जवाब में, उसके बदले में मेरा जवाब क्या होता है। हदायत की जब बात की जाती है तो मेरा रिएक्शन क्या होता है। दरअसल यहाँ पे ये बात देखना चाहिए हम सबको, मुझे और आपको। हमें खुद अपने अपने किरदार की, अपनी अपनी जो हमारी कैफियत है कि हम सबको खुद जांच पड़ताल करनी है। हमें किसी को पॉइंट आउट नहीं करना कि देखो उसको खुशी मिली उसने क्या किया, बल्कि अपने आप को देखना है कि जब मुझे खुशी मिलती है तो मैं क्या करती हूँ और मुझे जब गम मिलता है तो मैं क्या करती हूँ। और मेरे पास जब अल्लाह की हिदायत का पैगाम आता है उसमें मेरी कैफियत क्या हो जाती है, मुझे आपको जायजा लेना है। आज नंबर 48 पे चलता है। लिल्लाह, इसी के लिए है, सॉरी अल्लाह के लिए है, मुल्क समावात की बादशाह आसमानों की और जमीन की। अल्लाह की मलकियत में है जमीन और आसमान। यखलुकु, वो पैदा करता है, मायशा, जैसे वो चाहता है वो पैदा करता है, जैसा वो चाहता है। उसको पैदाइश के लिए किसी की रजामंदी लेने की जरूरत नहीं है। वो जैसा जिस चीज को चाहता है पैदा करता है, इंसानों को भी और जानदारों को भी, और जमीन के अंदर हर चीज को जैसा चाहता है पैदा करता है। यहाँ अता करता है लिमन यशाउ, जिसके लिए चाहता है। लिमन, जिसके लिए, यशाउ, वो चाहता है। इनासन, लड़कियां। वह यहब, और अता करता है लिमन यशाउ, जिसके लिए वो चाहता है। अज़्ज़कूर, मुजक्कर, जिसके लिए चाहता है मुअन्नस पैदा करता है, जिसके लिए चाहता है मुजक्कर पैदा करता है, जिसके लिए चाहता है लड़कियां पैदा करता है, जिसके लिए चाहता है लड़के पैदा करता है। ये अल्लाह की अपनी कुदरत है। जिसके लिए जो चाहे वो पैदा कर सकता है और उसको इसके लिए किसी की ना तो इजाजत की जरूरत है और ना कोई इससे सवाल उठा सकता है। अल्लाह इसको बेटियां बेटियां क्यों दिए जा रहे हो, अल्लाह इसको बेटा क्यों नहीं दे रहे, 5 बेटियां हो गई, 6 बेटियां हो गई, बेटा क्यों नहीं मिल रहा, और इसको बेटे ही पहले क्यों दिए जा रहे हो, उसको बेटी क्यों, बेटियां क्यों नहीं मिल रहे। तो ये अल्लाह से कोई सवाल नहीं कर सकता। अल्लाह हमारा बड़ा वाजे दो दफा कह दिया, लिमन यशाउ, जिसके लिए वो चाहे। तो अल्लाह से उसकी चाहत तलब किया करें, अल्लाह से उसकी चाहत मांगा करें। अपनी मर्जियां ना ढूंढने की कोशिश करें, ढूंढ नहीं सकते लेकिन सोच के ध्यान चाहिए कि हम कर सकते हैं। और या यूसफ की जो हम जुबरान व इनासन, या वो बिना चुरा कर दे देता है जुबरान लड़कों को व इनासन और लड़कियों को। वह यजअलु मन यशाउ, और वो बना देता है जिसके लिए चाहता है। मन यशाउ, जिसको चाहता है। अकीमन, बाज। देखिए अल्फाज को प्रभाव कीजिए पीछे। लिमन यशाउ का जिसके लिए चाहता है, यहाँ पे मन यशाउ जिसको वो चाहता है। अकीमन, बाज। बाज के इस लफ्ज को आप वैसा अकीमत बाज होता है, बिल्कुल जो सूख चुका हो। इतना बेशक वो अलीम कदीर, इल्म वाला है, कुदरत वाला है। अल्लाह फरमाता है वो जिसको चाहता है बेटे दे देता है,
बेटियां और बेटे मिला जुला कर दे देता है, और जिसको चाहता है उसको 5 कर देता है, कुछ भी नहीं देखता, उसकी मर्जी है। इन्नहु अलीमुन कदीर, बेशक वो कुदरत रखने वाला भी है और इल्म वाला भी है, और वो अंदाजा दुरुस्त लगाने वाला है कि कितनी लड़कियां पैदा करनी है, कितने लड़के पैदा करनी है, और किसको कुछ भी नहीं देना। ये जो आयत है ना, ये बहुत अहम आयत है, ये सफीदे की तरफ इशारा करती है कि आसमानों की पैदाइश या जमीन की पैदाइश हो, ये दोनों काम अल्लाह ताला के अपने हाथ में है। किसी इंसान का इसमें कोई काम नहीं, कोई दखल नहीं। अल्लाह जिस तरह चाहे उस तरह से पैदा करता है। तो ये हमें यकीन होना चाहिए कि जिसको अल्लाह बेटे दे रहा है या बेटियां दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि एक के ऊपर अल्लाह बहुत मेहरबान है और एक से अल्लाह नाराज है, नहीं, ये उसकी हिकमत है। जिस तरह उसको ज्यादा पता है कि किसको क्या चीज देनी है, ये अलीम कदीर जो है ना, ये बहुत अहम अल्फाज है कि उसका इल्म हर चीज पर छाया हुआ है, उसको पता है कि किसको क्या चीज कब देनी है। अच्छा, ये जो इसमें ये जो बेटे देना और बेटियां देना ना, और सॉरी, जो सब में जो जुबराना व इनासन, इसके दो तीन मतलब समझ में आते हैं। एक तो ये कि एक ही घर में वो लड़के और लड़कियां मिला जुला कर होता है, और एक इसका ये भी मतलब क्या किया कि ये फन्नस की तरफ इशारा है कि एक ही शख्स में मिला जुला कर दोनों सिफात पैदा कर देता है। और जिस तरह चाहे या जो मालूम है ये शय फकीमत, जिसको चाहता है वो 5 पैदा कर देता है। इतना कलीम कदीर, बहुत इल्म वाला, बहुत कुदरत वाला। इल्म वाले की बात मैंने पीछे की कि अपने इल्म से वो चाहता है जिसको वो चीज अता कर देता है। हम उस पे कोई सवाल नहीं उठा सकते कि ये कैसे हो गया या क्या ये क्यों हो गया। और कदीर और कुदरत रखता है, उसकी बादशाह की तरफ बात हो रही है कि अल्लाह जिस तरह से चाहे वो अता कर सकता है। इसके ऊपर ना कोई सवाल कर सकता है, ना इसके ऊपर जहन में कोई हल्का सा खुदा ना खासा नाशुक्री की कैफियत जहन में पैदा हो कि मेरे साथ ये या अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए कि हमारे जहनों में जो है ना, सहारों की तलाशी है ना, बारिश की तलाशी, हम कहते हैं लड़का ना हो तो हमें बड़े सब परेशानी लाभ हो जाती है। तो याद रखिए, औलाद जो है वो वारिस करने वाली नहीं, हमारे नेक आमाल हमारे वारिस करने। जब इंसान फौत हो जाता है, सबसे ज्यादा उसके आमाल को याद किया जाता है। अच्छे हो तो अच्छे अल्फाज में, बुरे हो तो बुरे अल्फाज में। तो फिर वारिस तो फिर औलाद ना हुई ना, वारिस तो हमारे नेक अमाल थे। तो अपने वारिसीन जो है नेक अमाल करने की कोशिश करें। सॉरी, वारिसीन हमारे अमाल में, सिर्फ नेक नहीं, हमारे अमाल हमारे वारिस होते हैं। तो अपने अमाल को दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि जैसे औलाद की यहाँ पे बात है ना, 4 किस्म की औलाद की बात है ना, लड़कियां, लड़के, या मिला जुला कर कोई लड़कियां कोई लड़के। और चौथी औलाद होती है, चौथी किस्म की है कि औलाद हो ही ना, 5। ऐसे ही बाप की 4 किस्म के हैं। एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा हुए, दूसरी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम बगैर माँ के पैदा हुए, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, और फिर बाकी सब इंसान जो मिला जुला कर पैदा हुए, माँ बाप दोनों के साथ पैदा हुए, और लेकिन मिला जुला कर पैदा हुए। आज दीवार पे चलते हैं। हिजाबिन, पर्दे के, और युरसिलु, या भेजे, पर्दा, या और सॉरी जी, मैं पीछे छोड़ दी आयत है। आपने ये क्या, ये मुझे समझ नहीं आयत नंबर 51, वमा काना, और नहीं है ये बशर है, किसी बशर के लिए, किसी इंसान के लिए, आएंगे कि यूकल के माहुल्लाह कलाम करे अल्लाह ताला से, इल्ला मगर वहयन, वही के जरिए से, और में बराई, या फिर पीछे से, हिजाब पर्दे के, और या युरसिला रसूलन, भेजे कोई रसूल, यूहिया, तो वो वही करता है बेइज्जती साथ अपने इज्जत के, मा यशा, वो जिसको वो चाहता है। इन्नहु बेशक वो अलीयुन, बुलंद है, हकीम और हिकमत वाला है। बताया जा रहा है किसी इंसान का ये मुकाम नहीं कि अल्लाह उससे रूबरू बात करे, क्योंकि इंसान कमजोर चीज है ना, आजिज है ना इंसान। उसकी जुर्रत कहाँ के अल्लाह के साथ बात कर सके। अल्लाह के साथ कलाम की जो पहली सूरत यहाँ बताई जा रही है कि अल्लाह ताला दिल में कोई चीज डाल दे या ख्वाब में कुछ नजर आ जाए। दूसरी है पर्दे के पीछे से, जैसे कि बंदा कोई आवाज
सुने लेकिन बोलने वाला नजर ना आए, जैसा हज़रत मूसा के साथ हुआ, जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेराज के मौके पर हुआ। अल्लाह ताला क़यामत से पहले अपना आप किसी को नहीं दिखाएगा। तीसरी सूरत क्या है कि कुछ फरिश्ता भेजे, जैसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए थे, और ये वही लाने की वो भी समय जिसके ज़रिए से अल्लाह ने सारी जो इल्हामी किताबें नाज़िल की हैं, वो फरिश्ते के ज़रिए से फरिश्ते वही लेकर आते थे। अल्लाह के इज़्ज़त से जो अल्लाह चाहता है, बेशक अल्लाह ताला बुलंद और बालातर है, बहुत आला है, बहुत बुलंद है। तो ये जो यहाँ पे ना दरअसल वही की इकसाम बयान की गई है कि फिर पीछे बात हुई ना कि अल्लाह से कोई सवाल नहीं कर सकता, तो अल्लाह से कोई बात नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि अल्लाह से बात करने का क्या तरीके क्या है। सबसे पहले इल्ला वाहियत, सिवाय वही के। वही की पहली किस्म जो है ना वो अलका और इल्हाम भी होती है। वही तो अंबिया के नाम पर आई है ना, लेकिन उसके अलावा वही इंसानों पर भी उतरती है, जिसको इल्हाम या अलका कहा जाता है। यानी अल्लाह ताला वही के जरिए से बराह रास्त बंदे तक अपना पैगाम पहुंचा देता है, उसके दिल में कोई बात डाल देता है। जैसे शायद की मक्की की तरफ वही करना सूरह नहल में हम पढ़ते हैं, हज़रत मूसा की बात है कि दिल में अल्लाह ताला ने अलका कर दिया, सूरह कसस के अंदर हमने पढ़े। तो ये वही की मिसालें हैं, और इसके अलावा जो कुरान में अल्लाह ताला ने बात बयान की है, और मिन वराई हिजाब, या फिर वो बात करता है पर्दे की ओर से। ये मैंने अभी जैसे बताई दूसरी किस्म कि हज़रत मूसा का अल्लाह से कलाम करना, और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज के मौके पे अल्लाह से कलाम करना। और फिर तीसरी किस्म बताई, और युरसिला रसूलन फयूहिया बिइज़्निही मा यशाअ, या वो भेजता है किसी पैगाम पर फरिश्ते को, फिर वो वही करता है अल्लाह के हुक्म से जो वो चाहता है। और ये तीसरी किस्म मैंने जैसे पहले बताया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्ब मुबारक पर भी इसी तरह से करती थी। और अल्लाह बहुत बुलंद और वाला है, उसकी शान बहुत बुलंद है कि कोई इंसान बराह रास्त बगैर हिजाब के अल्लाह से बात नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला कमाल हिकमत वाला है, हकीम, हिकमत के मुताबिक इंसानों तक वो अपनी जो कम्युनिकेशन है, वो अल्लाह ताला उसके लिए जो तरीका चाहता है वो इख्तियार कर सकता है। वकज़ालिका, और इसी तरह, और है ना वही की हमने इलेका आपकी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, रूहन, रूह हम एक रूह से, मिन अमरिना, अपने हुक्म से। ये यहाँ पे तीन किस्में बयान करने के बाद बताया जा रहा है कि इन्हीं में से एक तरीके के मुताबिक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी तरफ वही की है, और आपकी तरफ किताब भेजी है, जो कि दरअसल रूह मिन अमरिना, अल्लाह की तरफ से एक रूह है। वो एक बिन अमरीना, अपने हुक्म से। इसको अमरीना अल्लाह ताला अपनी तरफ इसको लेके जा रहा है, सीधा जा रहा है अपना का अल्लाह की तरफ। हमारे हमने आपकी तरफ भेजी रूह, एक रूह के जरिए से, बिन अमरीना, अपने हुक्म से। मा कुंता तदरी, नहीं तू जानता, बल किताब, किताब क्या है, वलल ईमान, और ईमान क्या है, वलाकिन, और लेकिन, जअल्नाहु, बनाया हमने उसको नूरन, एक नूर, नहदी, हम राह दिखाते हैं, बिही, साथ उसके मन नशा, जिसके जिसको हम चाहते हैं, बिन इबादिना, अपने से, व इन्नका, बेशक आप लतहदी, अलबत्ता हदायत पर है, इला तरफ सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम के। बताया जा रहा है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले वल किताब, किताब की बात कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ किताब भेजी, और आपको क्या पता कि किताब क्या है, आप नहीं जानते थे कि किताब क्या है, यानी कुरान क्या है। दरअसल कुरान की हिसाब, दरअसल कुरान अल्लाह ने इसलिए भेजा कि जो इंसान दुनिया में भेजे गए, वो ग़िज़ा, अपने जिस्म की को तवानाई देने के लिए ग़िज़ा हासिल करेंगे जमीन से। वो जमीन से ही बने, मट्टी से ही बने, जमीन से ही खाएंगे, और उनकी रूह को ग़िज़ा कहाँ से मिलेगी, अल किताब से मिलेगी। इस किताब से वो ग़िज़ा फराहम की जाएगी। इंसान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो सिर्फ खाता पीता रहे, खाता पीता रहे, खाता पीता रहे, और रूह को अपनी ग़िज़ा न पहुंचाए, तो वो इंसान अपाहज और मासूम हो जाता है। उसका ज़हन काम नहीं करता, उसका दिल काम नहीं करता, अल्लाह की हुक्में उसको समझ नहीं आती, उसकी रूह सैराब नहीं होती। इस रूह से उसका जो अल्लाह से जो ताल्लुक है, इस रूह के जरिए से जुड़ता है, और इस रूह के साथ ताल्लुक जोड़ने वाली चीज ये कुरान है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे यही फरमा रहे हैं कि तुम्हें क्या पता कि किताब क्या है। किताब तो दरअसल अल्लाह के साथ जोड़ने वाली चीज है। किताब क्या है, और फिर साथ ही आगे फरमा दिया गया वलल ईमान, और ईमान क्या है। ये भी बहुत
की ज़ात की मिसाल ईमान की जैसे दहकती हुई भट्टी की तरह से सूरह बकरा के शुरू में भी हमने पढ़ा था ना, तो यहाँ पे भी वही उसी तरह से समझाया जा रहा है कि आप एक दहकती हुई भट्टी की तरह से आपकी मिसाल है कि जो कोई आपके करीब भी आ गया वो ईमान की दौलत से माला माल गया, लेकिन वो लोग जिनके कंडक्टर्स खराब है ना, उनको जो रिसीव नहीं करते अच्छी बातों को, वो करीब आने के बाद भी वो हदायत हासिल नहीं करते, मुनाफिकीन की मिसाल है। वो पास होते हैं लेकिन हदायत हासिल नहीं करते। वो आपको कौन ईमान किताब ईमान आप नहीं जानते थे कि किताब क्या होता है और ईमान क्या होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप जानते हैं, दुनियावी तरीके के मुताबिक ना तालीम हासिल की, रवायती तरीके से आपने कोई किताब नहीं पढ़ी थी, आप उम्मीदीन में से थे, लेकिन इस कुरान को अल्लाह ताला ने ऐसा नूर बना दिया जिसके जरिए से अल्लाह ताला ने हिदायत दी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी और अपने बंदों में से भी जिसको चाहते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान की जो आपके दिल के अंदर ईमान था ना, जो हर फितरत इंसानी के अंदर ईमान मौजूद होता है, लेकिन हम इसको कुछ सूरह नूर में भी बात कर चुके हैं, वो ना जैसे डोरमेंट होता है, वो जैसे सोया हुआ होता है, लेकिन उसको जब बाहर के नूर की हरारत मिलती है ना, अल्लाह की वही की जब उसको हरारत मिलती है ना, तो उसको जगा देती है और वो जाग के बाहर के नूर से मिल जाता है और इंसान एक बेहतरीन इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जो ईमान था, वो तमाम इंसानों के दिल में जो ईमान मौजूद है उससे पवित्र ईमान था। उसमें सूरह नूर के अंदर जो हमने पढ़ा है ना, जो मैंने बात करी, आपकी जो की मिसाल है ना, तो नूर अला नूर की सी थी। तो आप जब आपको कुरान मिला तो आपके अंदर का नूर बाहर के नूर के साथ मिल के और ये इसने ईमान ने मुकम्मल की शक्ल इख्तियार कर ली। तो कुरान ने हर इंसान के साथ भी होता है, मुसलसल के साथ भी, और हर इंसान के साथ यही है कि अल्लाह ताला इस नूर को कुरान के नूर के साथ मिलाकर मजबूत कर बात समझने की ये है कि जो हमारे अंदर सोया हुआ ईमान है उसको जगाने की कोशिश करनी है, और वो जागेगा कैसे, पीछे बता दिया गया किताब से। किताब के जरिए से जागेगा, हमने इसको जगाना है। अल्लाह हमारा बेशक आप रहनुमाई करते हैं सिरात मुस्तकीम की तरफ, तो रहनुमाई होगी हमारी जब हम इस के साथ ताल्लुक को जोड़ लेंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम के ऊपर रखे और सीधे रास्ते पर रखे। अल्लाह हमारे सिरातिल्लाही रास्ता अल्लाह का, अल्लज़ी वो ज़ात लहू जिसके लिए माफिस समावाति माफिल अर्द, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है। अल्लाह खबरदार हो जाओ, इलल्लाही अल्लाह की तरफ मसीरुल रुजू करते हैं, लौटते हैं तमाम अफराद। अल्लाह का रास्ता वो है जिसके लिए जमीनों आसमान की हर चीज पैदा की गई है, और तमाम लोगों को अपने सारे मामलात को लेकर पलटना अल्लाह ही की तरफ चाहिए। लिहाजा जो नहीं सुनेगा उसके लिए तो शदीद तरीन मौलियत है, उसके लिए आजाद की खबर है। और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनकर, कुरान को सुनकर उस पर अमल को करने की कोशिश करेगा, यकीनन वो फायदे में रहेगा, क्योंकि बहरहाल पलटना हर चीज को अल्लाह ही की तरफ है। आप की नबूवत की दलील के तौर पर भी ये बातें आई हैं यहाँ पे कि बचपन से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी किसी दीन की तालीम को आपने पढ़ा, ना कोई दुनियावी तालीम हासिल की, ना किसी नबी की तालीमात आपने हासिल की, लेकिन यकायक जब अल्लाह की तरफ से हुक्म नाज़िल होना शुरू हुआ तो आपको नबूवत मिलना शुरू हुई, तो आपने वो नबूवत तक पहुंचाई, उसकी तालीमात तक पहुंचाई। अब नबूवत खत्म हो चुकी है, अब अलका हो सकते हैं, अल्हाम हो सकते हैं, सच्चे ख्वाब आ सकते हैं, जो नबूवत का 40वां हिस्सा होता है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी नबूवत जब वही आना शुरू हुई ना, तो उससे पहले आपको सच्चे ख्वाब आना शुरू। तो ये अल्लाह की तरफ से एक दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो खत्म हो गई, अब वही नहीं आएगी। अब सिर्फ इल्हाम या इल्का या सच्चे ख्वाब के जिनसे रहनुमाई ली जा सकती है। तो ये अल्लाह की हिकमत है, जिसके लिए चाहे फैसला बना सकता है। आखिर दामना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा आनिस माशफी की कब्री, अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरानिल अज़ीम वजअल लीमा